Good morning to everybody. Today we discuss chapter 11, marketing management. Marketing management. So we start. According to Peter F. Drucker, the objective of a business is nothing but to create a customer, create a consumer, and it is the concept of marketing management. How you sell your commodity in the market. And nowadays, marketing is more important than selling. Marketing is more important than selling. So what is the difference between marketing and selling? Marketing means to create the new customer by satisfying their needs, to transfer the tentative customer into the actual customer. It is the main objective of marketing. तो मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? मार्केटिंग है जो टेंटेटिव कस्टमर को एक्चुअल कस्टमर में ट्रांसफर करने का एक कोशिश. And what is sales? Sales is nothing but the transfer of goods or services from seller to buyer in exchange of money or on credit. That is sales. So broadly, it is the difference between marketing and selling. So next point, marketing, the periphery of marketing is much wider, the periphery of sales is narrower. Next, in marketing, the all emphasis on customer. All emphasis goes on the customer. The searchlight is on the customer. Customers need, customers का जो ज़रूरत है ये देखने का एंड फुलफिल करने का यही है कोशिश मार्केटिंग में. एंड इन सेल में क्या है? सेल में the main emphasis is on the production, because to sell the goods, and when the selling is when the sale of goods is in a much quantity, then it also help to production. Sales, on the other hand, sales helps production, because if there is a sales, then there is a flow of goods, then it is needed to produce more and more. So sales ultimately emphasis also in production and the smooth running of the business. तो ये है मेन ऑब्जेक्टिव. हो और एक पॉइंट है, मार्केटिंग के लिए एडवर्टाइजमेंट का जरूरत नहीं, मगर सेल्स के लिए एडवर्टाइजमेंट का जरूरत है. तो इन द ब्रॉड वे, सेल्स इज नथिंग बट टू ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ गुड एंड सर्विसेज फ्रॉम सेलर टू बायर इन एक्सचेंज ऑफ मनी, बट और ऑन क्रेडिट. But in marketing, it emphasizes on customer, customer's needs, customer demand, and the main aim to satisfy the needs of the customer. And next we discuss next point, packing and packaging. What is the difference between packing and packaging? तो ये बहुत आसान है, ये ज़्यादा डिस्कस करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये हम बोल देता है. पैकिंग, पैकेजिंग एंड पैकिंग. सो व्हाट इज द पैकेजिंग एंड व्हाट इज द पैकिंग? पैकेजिंग मीन्स, पैकेजिंग मीन्स द इंडिविजुअल पैकिंग ऑफ ए कंटेनर. द इंडिविजुअल कंटेनर, दैट इज द पैकेजिंग. सपोज यू purchase a bottle of cough syrup, then you just told, I am not ready to purchase the bottle. ये तो नहीं होगा, तुमको कफ सिरप
परचेस करना है तो बॉटल भी परचेस करना होगा। तो ये है पैकेजिंग फॉर द सेफ्टी, फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द कमोडिटी। इट इज द इंडिविजुअल पैकेज, इंडिविजुअल पैकेज। हर बॉटल के लिए एक पैकेज, हर टाइप ऑफ मेडिसिन के लिए ये पैकेज है। तो ये है इंडिविजुअल पैकेजिंग, इंडिविजुअल टू प्रोटेक्ट द गुड्स। वो गुड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कंटेनर है, बॉटल है, एटसेट्रा। एंड इन द बॉटल इट इज देयर इज ए लेबलिंग, एंड फ्रॉम दैट लेबल यू नो द क्वांटिटी of the commodity, the price of the commodity. In case of medicine, you or in case of food products, you also know the expiry date. So various information you find from the packaging. And what is packing? Packing is nothing but to pack the commodity in a large scale. You distribute 100 bottles of cough syrup from Kolkata to Hooghly. Then you need a packing. You send 1000 books from Calcutta to Kolkata to Nadia. Then you need the packing. So packing is nothing but to pack the quantity in a large quantity, in a bulk. The bulk quantity को पैक करना है पैकिंग। एंड इंडिविजुअल कंटेनर ये है पैकेजिंग। तो पैकेजिंग का प्राइस, भाव कितना किसको देना पड़ेगा? यू रिमेंबर, पैकेजिंग का जो प्राइस वो देना पड़ेगा कस्टमर को। तुम जब दवाई के लिए पैसा देता है तब तुम कंटेनर के लिए भी देता है। तुम कोई कफ सिरप के लिए पैसा देता है तो कंटेनर के लिए देने के लिए तुम रेडी नहीं है, ये बोलने से नहीं चलेगा। तो इन केस ऑफ पैकेजिंग, द प्राइस ऑफ द पैकेजिंग मस्ट पे बाय द कस्टमर। अगर कमोडिटी खरीद करना है तो उसका पैकेजिंग के लिए भी, उसका कंटेनर बॉटल के लिए भी पैसा देना पड़ेगा। मगर इन केस ऑफ पैकिंग द प्राइस मस्ट बोर्न बाय द सेलर, बिकॉज इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेलर टू सेंड द कमोडिटी in the house of the customer or in the different place. So पैकिंग के लिए जो प्राइस वो देना पड़ेगा किसको? वो देना पड़ेगा सेलर को। तो ये हो गया, ये तुम पढ़ने से हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग। ये एक बार आया है हायर सेकेंडरी में, वो ब्रांडिंग। तो ये भी बहुत इजी है, ज़्यादा बोलने का कोई ज़रूरत नहीं है। वो ब्रांडिंग है जो ग्रेडेशन, ब्रांडिंग मीन्स ग्रेडेशन। सो हातुड़ी मार्का फिनाइलेक्स আমাদের ছিল ছোটবেলায়, যে দ্য হ্যামাল লেভেল ফিনাইল, দ্য ट्री लेवल जो वनस्पति हम बोलता है, ये है शीप देशलाई बक्सो, दैट इज शीप लेवलिंग मैच बॉक्स एटसेट्रा। तो दीज आर द ग्रेडेशन। So branding means ultimately gradation of the commodity according to their, वो पहचान के लिए जो साइन, जो सिंबल, ये है ग्रेडेशन, इसको बोलता है ग्रेडेशन। And use the names, that is Pond's cream, निहार नारकेल तेल, लक्स साबान एटसेट्रा। हाथुड़ी मार्का फिनाइल हम बोला, जहाज मार्का देशलाई, गणेश मार्का सरषेर तेल एटसेट्रा। तो ये है एक ट्रेडमार्क जो कमोडिटी को, तुम्हारा कमोडिटी को अदर्स कमोडिटी से अलग करेगा। तो इसका एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस भी है। तो ये एक बार देखने से ही चलेगा, बहुत कठिनाई कुछ नहीं है। क्या है उसका एडवांटेज? क्या है? ये एक तुम्हारा कमोडिटी को अलग करेगा। कस्टमर लोग बहुत आसानी से तुम्हारा प्रोडक्ट को वो पहचान पाएगा।
एंड तुम्हारा ब्रांड के लिए उसका एक लॉयल्टी होगा। जो गणेश मार का सरसों तेल जो खरीद करता है वो उस ब्रांड भी खरीद करेगा। जो निहार कोकोनट ऑयल खरीद करता है पिछले 10 साल से, पिछले 15 साल से, केओ कार्पिन हेयर ऑयल परचेस करता है पिछले 15 ईयर्स से, 20 ईयर्स से, वो उस कमोडिटी परचेस करेगा। वो चिप नहीं करेगा। वो निहार कोकोनट ऑयल से पैराशूट और उत्तम कोकोनट ऑयल में शिफ्ट नहीं करेगा, क्योंकि ज़्यादा दिन से वो तो एक कमोडिटी यूज करके आया है, तो इसीलिए एक लॉयल्टी, वो ब्रांड के प्रति उसका एक लॉयल्टी होता है। तो ये भी एक इसका इम्पोर्टेंस है। तो एटसेट्रा ये है इम्पोर्टेंस। एंड तो इसीलिए क्या होता है, सेलर के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसका एक रेडी कस्टमर हो जाता है। ये हमारा प्रोडक्ट ही परचेस करेगा, हमको छोड़ के नहीं जाएगा, वो हमको प्रोडक्ट के लिए लॉयल हो गया एंड उसका वो हमारा फिक्स्ड कस्टमर हो गया, परमानेंट कस्टमर बन गया। तो ये है। एंड इसका डिसएडवांटेजेस भी है, जो डिसीजन मेकिंग में देर होगा। एंड कुछ टाइम तो ये क्या होता है, तो प्राइस हाइक होता है, इसीलिए प्राइस हाइक, कमोडिटी का प्राइस हाइक भी होता है। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा इन द व्यू ऑफ द सेलर। उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत इंक्रीज हो गया, क्योंकि बहुत परमानेंट कस्टमर है, तो उसका डिमांड फुलफिल करना है। वो क्वालिटी से कोई नाराजी कस्टमर लोग को नहीं आएगा, ये मन में रखना होगा। ये सब है। एंड ये सब है। तो और एक तो भी हम बोल सकेगा, जो जब लॉयल्टी हो जाएगा प्रोडक्ट के लिए कस्टमर से, तब वो कस्टमर को शायद वो प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, तब दिक्कत होगा, तब उसका एक मेंटल प्रॉब्लम होता। सपोज ये लॉकडाउन का टाइम है, ये टाइम तुमका मर्जी का प्रोडक्ट हर टाइम तुमको नहीं मिलेगा, तब एक मेंटल प्रॉब्लम होता है। जे हम तो ये प्रोडक्ट खरीद करता है, आप तो मार्केट में नहीं है, तब क्या करेगा, तो अब हमको दूसरा प्रोडक्ट खरीद करना पड़ेगा। मगर ये एक मेंटल प्रॉब्लम क्रिएट करता है कस्टमर को, जो वो जानता है जे हमको कुछ करना नहीं, हमका जो प्रोडक्ट नहीं है। सपोज अभी निहार कोकोनट ऑयल नहीं है मार्केट में, तो हमको पैराशूट और उत्तम ही खरीद करना पड़ेगा। मगर ये कुछ टाइम जो एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है कस्टमर के लिए, क्योंकि उसका एक वहां पर एक लॉयल्टी हो गया। लास्ट पॉइंट ये भी बहुत आसान है, द एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ ए गुड सेल्समैन। ये भी कोई कठिनाई नहीं, वो हम जस्ट पॉइंट बोलने से ही चलेगा। तो एक गुड सेल्समैन होने के लिए क्या क्या एसेंशियल क्वालिटीज उसको चाहिए। तो फर्स्ट, गुड अपीयरेंस, गुड हेल्थ एंड गुड हैबिट्स, कैपेसिटी फॉर हार्ड लेबर, पोलाइट एंड जेंटल मैनर्स, इंटेलिजेंस होना चाहिए, पेशेंस एंड परसिस्टेंस होना चाहिए, पेशेंस ऑफ माइंड, कोई हड़बड़ी नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका। नेक्स्ट जो होता है ऑनेस्टी, সোসিয়েবিলিটি যেটাকে বাংলায় বলছি মিশুকে স্বভাব, মানুষের সাথে মিশতে পারা, অ্যাম্বিশন और एस्पिरेशन, फर्म डिटर्मिनेशन, नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर को उसको हैंडल करना पड़ेगा। डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर आएगा, उसको अलग अलग कस्टमर का अलग अलग साइकोलॉजी है, तो उसको हैंडल करना पड़ेगा। इसलिए तो नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी भी चाहिए सेल्समैन को। एंड फ्लेक्सिबिलिटी एंड लास्ट सिंपैथी। इसका बगैर वो एडुकेशन है, ट्रेनिंग, नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट और सर्विसेज,
नॉलेज ऑफ सेवरल लैंग्वेज, क्योंकि कलकत्ता एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, वहाँ पर वेरियस लैंग्वेज स्पीकिंग कस्टमर आएगा, तो उसका साथ अगर उसका लैंग्वेज में वो बोल सकेगा, अच्छा नहीं है मगर उसको समझने पाएगा, तब वो कस्टमर का खुशी आएगा, मन में खुशी आएगा, वो शायद प्रोडक्ट परचेस करेगा। तो डिफरेंट लैंग्वेज में उसका जानकारी रहना चाहिए, बंगाली, हिंदी, इंग्लिश, ये तीनों में तो चाहिए ही। एंड लॉयल्टीज टू फर्म, ये है जो एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ ए गुड सेल्समैन। हर आदमी गुड सेल्समैन नहीं बन सकता है, तो दीज आर द एसेंशियल क्वालिटीज जो रहने से एक आदमी गुड सेल्समैन बन सकता है। ओके।